नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाधु एषु पञ्च नमो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियामो जय सुयाण बभो तीर्थयराणम् अपक्षिमा जय जय गुरुलोगाणं जय महात्मा कल्याण पारामं द्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः श्रीसुधर्मस्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। કાકા છઠ્ઠું એટલે કે હાથનું છઠ્ઠું વાંચતો છઠ્ઠું થઈ ગયું. जावंत विद्या पुरुषा सभ्य ते दुख संभवा लुप्यन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम में अनंत संसाરની અંદર દુઃખનું નિમિત્ત કોની સાથે છે? આ જગતની અંદર અજ્ઞાન દશા એ પણ મોટા દુઃખનું કારણ છે. જગતમાં બધા જીવો જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત કરી લે છે એવું પણ નથી હોતું. અને જેને આપણે જ્ઞાન દશા કહીએ છીએ એ પણ માત્ર સંસારના ઉદર પૂરતા જ્ઞાનથી કોઈને જ્ઞાની નથી કહેવાતું. ઉદર પૂરતી કારક જ્ઞાન પેટ ભરું વિદ્યા છે.
આર્થિક ઉપાર્જન કરવા માટેની પેટભરું વિદ્યા એ માણસના માટે ફક્ત ધનોપાર્જન પૂરતી જ કામ લાગે છે, પરંતુ એના જીવનની અંદર આત્માના માટે ક્યાંય ઉપયોગી થતી નથી. એટલે અહીંયા છઠ્ઠા અધ્યયનમાં સર્વપ્રથમ શબ્દ જે ભગવંતે વાપર્યો છે, જાવંત અવિદ્યા પુરુષા સવ્વે તે દુઃખ સંભવા. જેટલા જીવો તત્વજ્ઞાન રહિત, સત્ય જ્ઞાન રહિત, તત્વની સમજણ વગરના એવા જીવો સંસારમાં ખૂબ જ દુઃખી થાય છે. બીજી બધી વિદ્યા ઓછી વધતી હોઈ શકે છે ધનોપાર્જનની પાછળ, પરંતુ આત્મજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન હોવું એટલું જ અનિવાર્ય છે, બહુ જ અગત્યનું છે. સભિકમ પંડિતમ પાસ જાય પહે બહુ અપણા સચ મેં સિદ્ધા મિત્યંભુ એ સુખ ભય. માટે પંડિત પુરુષો એટલે શુદ્ધ સમજદાર પુરુષો જે છે, સર્વ જીવો પ્રત્યે પોતાની મેળે કેવી રીતે બધાથી સંયમ ઈચ્છો, સર્વ જીવો પ્રત્યેનો મૈત્રી ભાવ કેવી રાખવો, ભલે પછી સંબંધો માયા પિયા અનુસાર માયા બુદ્ધા બુદ્ધાય ઓ રસા નાલમ તે મમ માતાણાય લોપંત સકમુના. માતા પિતા ભાઈ બહેન પુત્ર પુત્રી પત્ની જે કોઈ પણ હોય એ સંબંધ પૂરતા સંબંધો છે, સંસાર પૂરતા સંબંધો છે. આત્માનું સગું કોઈ નથી, તમારા આત્માના હિતેચ્છુ કોઈ નથી, અને સંસારના સંબંધોની પાછળ સ્વાર્થ નિશ્ચિત હોય, સ્વાર્થ સાધવો એક લક્ષ્ય હોય છે, અને જ્યાં સુધી સ્વાર્થ સરતો હોય ત્યાં સુધી સંબંધો રાજી છે, બંને પક્ષે સંબંધીઓ રાજી છે. સંબંધો રાગથી બને છે, રાગથી ચાલે છે, પરંતુ રાગની પૂર્તિ જો ન થાય તો તરત સંબંધો બગડતા વાર નથી લાગતી. એમ અઠમ સભ્ય હાય પાસે સમીય દંસને છિંદ ગે ધીમ સ્નેહમ ચ ન કંખે ભોગ સંચય. હવે સમ્યકદર્શી જીવ જે છે પોતે સર્વ અર્થાદિ પોતાની બુદ્ધિ વડે જોઈને વિષય લુંપતાનો અને સ્ત્રી પુત્રાદિકને મેળે પ્રેમને આ સર્વ પ્રસંગને નિમિત્ત પ્રજવે છે. એટલે સંસારના સંબંધો તમારી સાથે સાધન સામગ્રી સુધીના સંબંધો છે. પૈસો ટકો સુખ શાંતિ હોય તો સંબંધીઓ પણ રાજી થાય છે, સંબંધો બનાવી રાખે, ટકાવી રાખે. જે દિવસે તમારી પાસેથી આ બધી સાધન સામગ્રીઓ ઘટી કે તરત જ કોઈ સંબંધીઓ તમારાથી દૂર થતા વાર નથી લગાડતા. ઇહમે ગે ઉસ મજ્જન મંદંતે અપચ્ચ ખાય પાવગમ આયર્યમ ચિત્તી વિદ્ધિ વિદિતાણમ સબ દુઃખાણમ ઉચ્ચયમ. સંસારમાં કપિલાદિ જ્ઞાનવાદીઓ એમ માને છે કે હિંસા આદિનું પચકાણ કર્યા વિના પોતપોતાના મતમાં નિર્દિષ્ટ અનુષ્ઠાન સમૂહને જાણીને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થઈ શકાય છે. આજથી નહીં, હજારો વર્ષોથી હંમેશા માણસ દુઃખથી મુક્ત થવાના ઉપાયો શોધતો જ રહ્યો છે. મિથ્યાત્વી જીવનું પહેલું લક્ષણ છે દુઃખ કેમ ટળે ને સુખ કેમ મળે છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં દુઃખને ટાળવું એટલા માટે દરેક જીવ સંસારમાં જેટલું એની પ્રયત્ન કરે છે, 100 વર્ષના જીવનમાં તમે જોવા જશો તો તમને લાગશે કે 100માંથી 80% પુરુષાર્થ એનો દુઃખમાંથી બચવા માટેનો જ હોય છે, સુખ મેળવવા માત્રનો જ હોય છે. દુઃખ કેમ ટળે ને સુખ કેમ મળે, કઈ રીતે દુઃખ ટળી શકે ને કઈ રીતે સુખ મળી શકે, એની પાછળ એનું જીવન વીતી જાય છે. अब जब तक आत्मा की समझ नहीं है, आत्मा दशा का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा बिल्कुल इससे परे है. ये सांसारिक सुख आत्मा के लिए सुख नहीं है, ये भौतिक पदार्थों के दुख भी आत्मा के लिए कोई दुख नहीं है. आप इसको आत्मलक्षी न बनाए और सुखदक लक्षी जीवन भी न बनाए. બસ ઘણું થઈ ગયું શું આપના જીવનમાં દુઃખો ટળી ગયા ને સુખ સમૃદ્ધિ મળી ગઈ એટલે ઘણું થઈ ગયું, ऐसा मत सोचिए. थोड़े काल के लिए पुण्य का उदय होगा तो जीवन में सुख आ जाएगा,
लेकिन इतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। पूर्व भव के पुण्य के आधार पर अब ये पूर्व का भव आपका चल रहा है, अब पहले का भव है, अब इसमें आपने कहाँ पुण्य उपार्जन किया है, कहाँ आपने पाप भारी किया है, फिर वापस आपने पुण्य अच्छा किया है, फिर पाप ज्यादा किया है, फिर कभी आपने पुण्य और पाप, अब जीवन के अंदर हिसाब करने जाओ तो इस व्यक्ति के जीवन में 70% पाप है, 30% पुण्य है। अब यहाँ से मृत्यु के बाद ये जीव अपने साथ में ये सारा प्रमाण, अब ये इधर इसके 70% और ये 30%, अब ये टक्कावारी साथ में लेकर अब यहाँ पर नया जन्म जी रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से ये पाप कर्म उदय में आएगा, यहाँ से ये थोड़ा पुण्य उदय में आएगा, फिर वापिस ये पाप कर्म उदय में आएगा, फिर थोड़ा सा पुण्य आएगा। अब कब कौन सा ज्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा, तो जब पुण्य उदय में आएगा तब आपको यहाँ पर जो है ये सुख दे देगा, ये आपको जीवन के अंदर दुख देगा। तो ये जीवन का क्रम ही इसी प्रकार का है। अब किसी के जीवन में पहले सुख आता है, बाद में दुख, किसी के जीवन में पहले दुख आ जाएगा, बाद में सुख। उदय काल देखा गया है, उदय काल किसका है, पुण्य का उदय ज्यादा है, थोड़े दिन ज्यादा रहेगा, पाप कर्म का उदय आ गया, फिर वापस पाप का दुख का चलेगा। अब पाप कर्म ज्यादा है तो दुख के दिन ज्यादा चलेंगे, पुण्य कर्म का उदय कम है तो सुख के दिन आपके कम चलेंगे। पूरा जीवन सुख में जाए ऐसा कोई हाँ घना है, कोई तो ऐसे तो है। जन्म से मृत्यु तक। हाँ जन्म से मृत्यु, आपका आयुष्य आपके पास 100 बरस का है और पुण्य आपके पास जो है वो 1000 साल का है। अब 100,000 के अंदर 100 आपका बीते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो 1000 आपका एक अखंड धारा में चलना मुश्किल है। एक अखंड धारा में सुख ही सुख चल जाए, 1000 मैच खेलने वाला एक भी मैच न हारे और हमेशा ही जीतता रहे, ऐसा होता है क्या? 10 जीतता है तो 2 हारता है, फिर वापस 2 हारता है तो 10 जीतता है, ये क्रम संसार में। તમે 360 દિવસ एक हरखू कमाओ छो खरा, लेकिन आप जानते हो कभी एक सीजन में ज्यादा कमा लिया तो 12 महीने अपने तो ठीक ही चलेंगे। एक सरीखा तो पुण्य, क्योंकि एक सरीखे पुण्य उपार्जन भी नहीं किया तो अखंड धारा में पुण्य ही पुण्य चलता रहे, ऐसा शालीभद्र जैसा तो दुनिया में बहुत कम। और ये भी साधन सामग्री के पुण्य है, आप इनको बहुत बड़ा पुण्य मानने की भी गलती मत करिए, बहुत बड़ा सुख मानने की भी गलती करिए। द्रव्य पुण्य, द्रव्य सुख साधन सामग्री दे करके छूट जाएगा, उसका काम इतना ही है। भाव पुण्य आपके साथ है, धर्म के उत्कृष्ट मार्ग से उपार्जन किया पुण्य है, वो फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन पुण्य का काम साधन सामग्री का है। अब मोहनीय कर्म अंदर में रहेगा, क्लेश कसाय राग द्वेष आय वो अशांति, ये सारी आपके जीवन में बनी रहे तो ये तो भाई साहब पुण्य का काम ही नहीं है, ये अशुभ पाप कर्म का ही काम है। आत्मा के घर का पहले हिसाब कर्म समझने का प्रयोजन यही होता है कि इधर जब हम देखेंगे तो ये आत्मा के घर में इतना ही भाग आपके पुण्य का विभाग बनता है। अब सबसे बड़ा ये जो है मोहनीय कर्म, अमोनीय कर्म के अंदर ये आ गया कसाय मोहनीय। अब जीवन में अशांति बढ़ाने वाला तो कसाय राग द्वेष है। अब ये जितने होंगे आपके जीवन में कसाय चलेगा। अब इधर थोड़ा सा पुण्य आपके जीवन में आ गया, अब इस पुण्य ने आपको थोड़ी सुख शांति दे दी, संपत्ति दे दी, साधन सामग्री दे दी, लेकिन ये आपके जीवन में इतना प्रमाण में ज्यादा है, कसाय आपको जीवन में क्लेश कसाय ज्यादा कराएगा। करोड़पतियों के घरों में जाके देखो तो क्लेश कसाय के कारण एक दूसरे का बनता नहीं है। आप जू में जाकर बड़े बंगलों में देखो, समुद्र किनारे के 10 करोड़ के बंगले हैं, देराणी एना रूम में बनावीने खाय छे, जेठाणी एना रूम में बनावीने खाय छे, सासु ससराने कोई
एक ચાનો કપ આપવા તૈયાર નથી। ये परिस्थिति हम तो अब सब जगह आंखों से देखते हैं भाई साहब। अब ऐसी परिस्थिति तो हर जगह पर बनी, सब जगह, क्योंकि पुण्य का विभाग अलग है और बाकी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय तो चारों ही अशुभ पाप कर्म ही है। इनके अंदर तो कोई पुण्य की प्रकृति ही नहीं है। आपको गुस्सा ज्यादा आता है, ज्यादा डबल क्रोध करके किसी को डरा धमका के चुप कर दो, ये क्या आपका पुण्य है क्या? इसको पुण्य मत मानिए आप, गलती भी मत करिए। अब ये कसाय मोहनी है, रागद्वेष मोहनी है, और इसी के साथ इसके अंदर यहाँ पर ये जो है मिथ्यात्व मोहनी है। अब मिथ्यात्व मोहनी है, कर्म पड़ा है, वो कहेगा भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, धर्म नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, मुंह को ने पंचायत खाई पी लीला लहर करो, भूखा माथा को करो, ये कर्म ऐसा बोले। लेकिन अब इसके पास भी पुण्य तो है, 10 करोड़ का बंगला है, 2 करोड़ की गाड़ियां हैं, 3 करोड़ का फर्नीचर है, 5 करोड़ के दागिने। अब है उसका क्या भाई साहब? ये कर्म अलग है, ये पुण्य का खाता अलग है। ये सुख संपत्ति दे देगा तो चलो राजी रहो, इससे इसका कोई संबंध बैठता नहीं। अब सब प्रकार के कर्म हैं। अब इन कर्मों के अंदर जीवन में आप लाए तो कहां से? पूर्व भव में या पूर्व काल में उपार्जन करके ना। जब से जहां से जैसा उपार्जन किया था आप अपने साथ में लेकर आए हो। आप साथ में लेकर आए हो तो आपको ही भुगतना है। વાલકેશ્વરની અંદર એક બહુ મોટું પરિવાર હતું। બાપ દાદા હતા ત્યાર સુધી સુખ સંપત્તિ જબરજસ્ત હતી। બાપ દાદા જતા રહ્યા એટલે પોતાની જગ્યાને બંગલો વેચવામાં 1400 કરોડ આવ્યા। હવે આટલા 1400 કરોડનું કરવું શું? એટલે દીકરાઓને પોતરાઓને બધાય જે છે કોઈ કયા રસ્તે ને કોઈ કયા રસ્તે ને કોઈ કયા રસ્તે ભાગશાળી બાપ દાદાની આખી મિલકત બધી વેચી કરીને ખાઈ કરીને ખાલી ખલાસ થઈ। ક્યાં બચે? પણ તમારું પુણ્ય તમારી સાથે છે, તમારું પુણ્ય દીકરાને કામે લાગશે। તમે જીવતા છો ત્યાં સુધી તમે દીકરાને રાજી રાખશો, તમારા ગયા પછી શું? જે દિવસે તમે ગયા અને પાછળ તમારા દીકરા બીજા આવ્યા એનું પુण्य છે કે નહીં? अब घर का मालिक वो है, घर के अंदर बड़े वो है, उनका खुद का पुण्य स्टॉक में है कि नहीं पहले ये देखो। जाने वाला अपना पुण्य साथ में ले जाता है, आने वाला अपना पुण्य भी साथ में लेके आता है। एक नવું બાળક આવે છે, ઘરમાં જન્મે છે તો એનું પુણ્ય સાથે લઈને આવે। ઘરમાંથી એક માણસ જાય છે એનું પુણ્ય લઈને જાય છે। अब घर के अंदर 10 मेंबर हो, किसके पुण्य के उदय में ज्यादा सुखी हो? अब 10 का इकट्ठा करो। મરણ થયા પછી દીક્ષા લે તો બંનેમાં કેમ છે? દીક્ષા લીધા પછી એનું પુણ્ય એને પુણ્ય કામ આવે। પુણ્ય પોતાની સાથે જ છે। દીક્ષા લીધી એ તો એ દીક્ષા આના ઘરની છે, મોહનીય કર્મના ઘર માટે દીક્ષા છે। आपको मोहनीय कर्म कम करना है, घटाना है, जीतना है, इसके लिए आपने दीक्षा ली। पुण्य तो आपके साथ में है ही। સાથ में रहता है तब तक साथ में पुण्य काम આવે। अब एमने यश, नाम, कीर्ति, सुख, समृद्धि, संपत्ति બધું જ છે, બસ બધું साथ में છે। ऐसी स्थिति में जब जो आपके साथ जितना चलेगा, अब आप किसमें सुखी हो किसमें दुखी हो? सन्निहिम च न को विद्या लेव मायाए संजय बखी पत्तम समादाय निरपेक्षो परिवय। अब संयम लेकर के भी कोई दीक्षा लेकर साधु बन जाए, अब लेप मात्र से भी पात्र आदि ले पाए नहीं। अब अनेक पदार्थों से वो भी अपने आप को तो संभालते ही। ऐसा समीओ लज्जो गामे अभी अणिय ओछरे अपमत्तो पमत्ते हिम पिंडवायम कवे से। संयम की साधना में लगे हैं, दीक्षा लेकर चल रहे हैं। प्रति क्षण प्रति मिनट उनको जीवों को अभयदान देना है। एक रातना अंधाराમાં પણ દંડાસન લઈને ચાલે તો જીવની રક્ષા થાય છે। અંધારું અંધારું બંધાતા માટે છે।
અંધારામાં કઈ આંખો તમારી ગમે એટલી પાવરફુલ હોય તો એ નહીં જોઈ શકે. તો તમને જૈનાનું સાધન આપી દીધું. મુખ્ય હેતુ છે કે જીવ રક્ષા થવી જ જોઈએ. પ્રાણાતિપાત વિરમણ મહાવ્રત છે. એટલે એ જીવોની રક્ષા કરતા કરતા તમે 10 ગણું પુણ્ય ઉપાર્જન કરો છો. એક પણ જીવને મરતા બચાવો છો. એક પણ જીવ તમે તમારા હાથે મારતા નથી. આ જીવ દયાનું પુણ્ય સૌથી મોટું છે. તો એ જીવ રક્ષા હવે પુણ્યના ખાતામાં પુણ્ય જમા થશે અને આ બાજુ તમારું અંતરાય કર્મ ઘટશે. जीव रक्षा जीव दया एक तरफ आपका जो है अंतराय कर्म घटाएगा और दूसरी तरफ पुण्य बंधाएगा सब. एवं से उदाहु अनुत्तर नाणी अनुत्तर धन से अनुत्तर नाण दंसन करे अर्हा नाय पुत्ते भगवम बेसालिए न्याय. 18 श्लोक के इस छोटे से छठे अध्ययन के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए केवल दर्शनी बने हुए सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा ने इस तरह से थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर इस रूप से कही है. अब यहाँ पर आगे चलते हम 7वें अध्ययन की बात आती है जहाँ एसम समुद्दिश्य कोई लयम भोजनम जब संदेशा उसे जाभी गणे. अब निर्दय पुरुष अगर किसी पुराना आदि उद्देश्य ने अपने लिए आंगन में किसी प्रकार से पाले तो कैसे लोग जो है हिंसक लोग जो है वो पहले गेटा बकराने લઈ આવે છે અને લાવીને પછી એને મહિનો બે મહિના ખવડાવે છે. ખૂબ ખવડાવે. अब बेचारा वो प्राणी क्या समझेगा. तिर्यंच गति का प्राणी वो तो सिर्फ इतना ही समझता है कि बहुत अच्छा है मेरे को इतना खिला पिला करके राजी કેટલી મારી સેવા કરીને કેટલું મને સંભાળે છે. संघी पंचेंद्रिय प्राणी संघी पंचेंद्रिय होने से उसका मन है उसको विचार आते हैं समझे છે વિચાર આવવાથી એને ખ્યાલ આવે ને સમજે છે. મને કોઈ અત્યાર સુધી બહાર એટલું ક્યાંય ખવડાવતા નહોતા કોઈ આપતું નહોતું એને ક્યાંય જમીન ઉપર ફરીને જે હોય તે ખાતા હતા બીજું કંઈ મળતું નહોતું એના કરતા આ શેઠ કેટલા સાચવે છે ખવડાવે. હવે એને એટલી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ નથી કે મને 2 મહિના ખવડાવીને રષ્ટપુષ્ટ કરીને પાછી મારીને એ ખાઈ જશે એવી એને ગતાગમન. शू समझी सके. मनुष्य को संसार के अंदर हमेशा ही भविष्य की दृष्टि से अपना वर्तमान सुधारते जाना है. आपको दीर्घ दृष्टि बनानी है. तिर्यंच में मनुष्य में इतना फर्क है. तिर्यंच का पशु पक्षी का जीव आहार के अंदर डूब जाए उसको आहार की संज्ञा में रख करके सब कुछ करा लिया जाता है. घोड़ा ने चामुक मारी ने दौड़ावता जाओ ने आगल जईने खवડાવવા બેસાડી दो એટલે બેચારો તમારે આધીન પરાધીન થઈ ગયો. ફરી પાછો દોડાવો ફરી પાછો મારો ને ખવડાવો. દોડાવે 10 ગણું ત્યારે ખાવા આપે 1 ગણું. अब ये तो संसार का व्यवहार ही इस तरह से हो गया है. बलद गाड़ा जोड़ीने 2 बलदोने जोड़ीने काम करावे 10 गणुं ત્યારે આપે 2% ખાવા. अब ऐसी स्थिति आ चुकी है. अब ये बेचारे संघनी पंचेंद्रिय प्राणी कहाँ जाएंगे क्या करेंगे. आखो दिवस एनी मावजत करे. मावजत गुजराती शब्द में खूब खवડાવી પીવડાવી અને જે છે રષ્ટપુષ્ટ બનાવી કરીને એવો સાચવે પણ પછી એને કોઈ વેચા કોઈ વેચે ને કોઈ એને કાપીને ખાઈ જાય ત્યારે એને ખબર પડે છે કે અરે આના માટે મને ખવડાવ્યો તો આના માટે મને ખવડાવતા હતા. लेकिन उसके पास दीर्घ दृष्टि नहीं है. मनुष्य को इतना स्वार्थी नहीं हो जाना चाहिए कि मात्र उसको वर्तमान ही दिखाई दे. आप दीर्घ दृष्टि से भविष्य का विचार करिए. मारो कोई गैरफायदो उठावे छे मने मात्र जे छे पोताना स्वार्थ माटे कोई उपयोग करी रहे छे मारो. इतनी दीर्घ दृष्टि तो आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. हम जैन है भागशाली. जैन बीजाने नौकरी आपे पोते नौकर थईने नौकरी करे नहीं. जैन कोने कहेवाय. उच्च गोत्रमां आवेला पुण्यशाली छो. पुण्यशाली एने कहेवाय के जेना हाथ नीचे बीजा 100 जना पेट भरता होय. तमे कोईना हाथ नीचे पेट भरता हो एमां तमारुं अंतराय कर्म उदयमां छे.
તમારું પ્રબલ પુણ્ય ઉદયમાં નથી ભાई। इसलिए हमारे यहाँ उच्च गोत्र के अंदर उच्च कुल के हिसाब से बाप दादा हमेशा यही सिखाते थे, बेटा भलू करजे कोईनु, तारा हाथ नीचे 100 जना पेट भरे एवं काम कर। तू जईने कोईना हाथ नीचे पेट भरशे ए मने जोईने दुखी थशे, मने जोईने बहु दुख थशे। तू गमे एटલું कमाई लेशे परंतु नौकर नौकर कहेवाशे, नौकरी करतो माणस नौकरी वालो लागशे। पुराना जमाना प्राचीन काल 50-100 साल पहले नौकरी करे छे कोई सांभळे तो छोकरी नहोता आपता ने आजे के छे जॉब करे छे तो के पहला। હવે આ કાલ કેવો બદલાઈ ગયો, एक 50-100 साल में देख लो उल्टा काल। पहला एम कहता था कि कई नहीं कमावतो ने, अरे कई नहीं कमावतो नहीं, बाप दादा नी गादी पर बैठो छे ने, अपनी दीकरी आपने पहला आपी छे। ये इसको कहते हैं गर्भ श्रीमंताई, जन्मजात श्रीमंताई लईने आव्यो छे। एने पैसा कमावानी जरूर नहीं, पैसा कमातो होय एना आंकड़ा जोईने लग्न न कराय कोई दाड़ो। बाप दादा ने कमावेली पुण्यानी गादी बहुत मजबूत है समझाय। अपनी देशी मारवाड़ी में कहता पेढ़ी पेढ़ी देखता है, हमारी पेढ़ी बड़ी मोटी है ऐसा ख्याल है। अब उस जमाने में ये देखकर, कोई घराना देखकर, कोई कुल देखकर देखते थे, कोई नामना और यश देखकर कन्या देते थे और लेते थे। ओहो बनोरे घरेश्वरी आर में से ये कलयुग अवसर्पिणी उतरते काल के असर कितनी जल्दी देखने को मिलती है। हालांकि इसकी प्रोसेस बहुत कम होनी चाहिए, 1,000 साल में उतरना चाहिए, क्योंकि 21,000 बरस निकालने हैं। अब 50-100 साल में इतना जल्दी उतरते उतरते बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अनर्थ होगा। कोई दिवसे कोई पुरुष की कमाणी जोईने लग्न न कराय, अने कोई दिवसे कोई कन्या नहीं लगा कमाणी जोईने लग्न न थाय। अब ये सब बुजुर्गों ने शास्त्रकारों ने बनाए हुए नियम है। हेमचंद्राचार्य महाराज तो 1,000 वर्ष पहला थई गया नहीं, आज महावीर से लेकर 2,500 वर्ष तक ये परंपरा चल रही है। इतना जल्दी किसी ने भी विपरीतीकरण किया नहीं। आपने जब से कन्याओं का एजुकेशन डबल कर दिया है तब से ये तकलीफ है आपकी। ने हवे शू के छे कि कन्यानी कमाणी करता पुरुषनी कमाणी डबल होय तो ज लग्न कराय, नहींतर न कराय। એટલે બેચારી ઘરે બેઠી બેઠી 30-35 ને 40 એમને એમ થઈ જાય। હવે टर्म्स कंडीशन लावानी, बम्बई से बाहर ही नहीं भेजनी है, बम्बई में रहना है, बम्बई में ही करना है। પછી કે નહીં એના કરતા ડબલ કમાણી વાળો, પછી કે એના કરતા, પછી કે એના કરતા। ये शर्तों शर्तों के बीच में बेटी हो जाती है 30-35-40। फिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? पैसों तुम्हारी पास है, पैसों राखो तुम्हारे। 40 की उम्र, 39 की उम्र, 38 की उम्र होने के बाद पैसा क्या काम आएगा? जीवन का कोई गणित तो होता है कि नहीं होता है? इसलिए अब आज के काल में पुण्य कम होती जा रही है। हर माँ बाप को चिंता है कि मैंने इतना बिजनेस बढ़ाया, इतने क्रेडिट बढ़ाए, इतना बिजनेस बढ़ाया, अब मेरे पीछे कौन करने? पहले आप देखें 7-7 पीढ़ियों तक धंधा चलता है, एक ही धंधा, एक ही व्यापार, एक सरीखा व्यापार 7 पीढ़ियों तक चलता है। अब आज आपका बेटा ही आपकी गादी पर आएगा कि नहीं आएगा? बाप ने इतना फैला कर विस्तार करके, पुण्य अच्छा था तो फैलाया हमने। अब आपके पीछे कौन है ऐसा? अब आपको लगा कि मेरा बेटा तो भाई साहब अब पढ़ लिख करके जॉब में जा रहा है, वो तो सर्विस करेगा, तो बाप धीरे धीरे अपना ही सब कुछ संकेलने लगे। उसको सब संकेल वाइंड अप करने में 10 साल लग जाए। क्षति पुण्य या दशा थी रही, पुण्य होते हुए सब। अब आप पैकेज देखकर शादी करते हो, वो भी इतना कमा रहे, ये भी इतना कमा रहे, दोनों की शादी करो। अब ये सब अवसर्पिणी के लक्षण हैं, उतरते काल का लक्षण। और इस उतरते काल के अंदर अब आज जैन समाज बिल्कुल जो है पारसियों के बाद वेरी नेक्स्ट अब दूसरे क्रम पर आ गया है। पैसा बढ़ रहा है, संतान घट रहे हैं, संतति घट रही है, पैसा बढ़ रहा है।
पैसा तो बुद्धि बल से पुण्य बल से कमाना है, आप कमा लोगे, ख्याल आएगा ना, लेकिन बाद में संतान कहाँ से लाओगे? बाद में संतान तो नहीं मिले। और ये परिणाम आ रहा है कि जैन समाज की संख्या दिन प्रतिदिन अब कम होते 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 जा रही है। अब किसी को चिंता नहीं है भविष्य के 25-50 साल के बाद की, कोई चिंता नहीं। और हिंदुस्तान के अंदर दूसरा एक समाज है कि उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। पहले जहाँ कुछ भी नहीं दिखता था, वहाँ सब जगह जाओ तो पहले वही काले बुरखे वाले दिखते। अब ये समस्या है। पुणे के अंदर खड़की में ऐसी परिस्थिति आ गई कि मंदिर के पूरी लाइन में जहाँ जैन थे, अब वहाँ एक नहीं बचा, सब जो है दूसरे समाज के, ऐसे समाज के लोग आ गए। अब उनकी बकरी ईद के दिन चारों तरफ से दोनों गली के दरवाजे बंद कर रास्ते पर बकरा काटे। अब जैन तो कोई आरती करने भी नहीं जा सकते। और वहाँ बने हुए मंदिर जो है वो अब क्या करना है, कैसे करना है? अब वहाँ से मंदिर ही उठा लो भाई, ले जाओ दूसरी जगह जाओ, क्या करेंगे? नहीं करोगे तो कैसे हो? ये परिस्थितियां सामने आ जा रही है आज की तारीख में, और ऐसे तो 50 जगह हो गई, 50 जगह। उनको गल्फ कंट्रीज से डबल पैसा मिल रहा है। अच्छे श्रीमंतों की कन्या को उठा के ले जाओ और अच्छे श्रीमंतों के घर ले लो, जो मुंह मांगा पैसा दे दो। एक गली में अगर एक घर उनका आ गया तो बाकी दूसरे तो जैन तो अपने आप ही, वो तो ये मानते ही है, समझते ही है कि दुनिया में गाय से भी क्या ज्यादा डरपोक कोई है तो जैन समाज। अब ये हालत होती जा रही है, क्या करेंगे आप, कहाँ तक जाओगे? और जनसंख्या के दृष्टिकोण से जब नीचे गिर जाएंगे तो न तो सत्ता में आपकी कुछ चलेगी, न सरकार में आपकी चलेगी। जैन पूरे हिंदुस्तान में कहीं वोट बैंक नहीं है, और दूसरे 10 समाज वोट बैंक बने हुए हैं। वोट बैंक समझ गए आप? दूसरे 10 समाज वोट बैंक बने हुए हैं। कुछ एक समाज की ऐसी इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उनके लिए तो तुष्टीकरण के मंत्र पर सारे पार्टी की पार्टी चल रही है। और जैनोना वोट ऊपर कोने पड़ी છે કે અમે જૈનોના વોટ ઉપર જ આવીએ છીએ ને જૈનોના વોટ ઉપર જ જીવીએ છીએ, એવા કેટલા કોણ છે? કોણ જૈનોના હિત માટે શું કરવાના છે? ખાલી ઊભા રાખો એટલે પારસ મંજીને આપ રાખો, કતરા જૈન वोट दे दे, हमारे अंदर टांग खींचने वाले। ये तो पारस मंजी तो ऐरा है ना, ऐरा है ना, ऐरा है, चालू हो जाएगा। अपने ही लोग जा करके, जहाँ श्रीमंताई ज्यादा होती है, जहाँ संपत्ति ज्यादा होती है, वहाँ जेलसी भी ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना। अन्य किसी समाज को देखिए जहाँ संपत्ति ज्यादा नहीं है, सुखी इतने ज्यादा नहीं है, तो जेलसी भी इतनी ज्यादा नहीं। वो रास्ते पर स्कूटर जो है रिपेयरिंग करके 7 बरस का बच्चा रोज का 1000 रुपया कमा ले। 7 बरस का अनपढ़ लड़का रास्ते ऊपर स्कूटर रिपेयरिंग करके, साइकिल का पंक्चर निकाल करके कमा। अब आप तो ये कर नहीं सकते हो साहब, आप ये काम आपसे होने वाले नहीं है साहब। और कई हमारे जैन परिवार आज भी जो है मध्यम वर्ग तो कुछ ऐसा है कि ना तो बोल सकता है, ना सहन कर सकता है, ना कह सकता है। कोरोना काल के अंदर अच्छे अच्छों के दिन बदल गए। परिस्थितियों को देखिए आप सब। जब पुण्य का उदय प्रबल होता है तब क्या होता है? खाली पुण्य बढ़ाओ, खाली पुण्य बढ़ाओ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आत्मा के गुण भी बढ़ाने, और गुण बढ़ाने के लिए कर्म क्षय करना। कर्म के आवरण का क्षय होगा तब गुण बढ़ेंगे, और इधर प्लस पॉइंट में खाली पुण्य ही पुण्य आपके खाते में रहेगा। दोनों का उपाय लक्ष्य में रखो। तो आओ परीक्षीणे चुया देहा विहिंसगा आसुर्यम दिसंबाला गच्छन्ति अवसातम। अब विविध प्रकार के हिंसा करने वाले, मूढ़ से आयुष्य क्षीण करने वाले और देह से चलकर पराधीन ऐसे अंधकार से युक्त असुर संबंधी नरक वृत्ति में जाते हैं। सब हिंसक की वृत्ति करने वाले अब उस समय भी थे, आज ही है ऐसा तो नहीं है, उस काल में भी थे। महावीर स्वामी के समय में भी ऐसी हिंसा करके पेट भरने वाले भी बहुत। ये कोई पाप आज का नहीं है, सदियों से चला है।
लोगों की दुर्बुद्धि उस प्रकार की है, उनको यही लग रहा है सब। आज आप कल्पना करोगे, समुद्र से मछलियां मार करके बेच करके पेट भरने वालों की संख्या लाखों करोड़ों, लाखों करोड़। उसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट है, क्या करना है आपको? सीधे जाल लेके गए, डाले समुद्र में, आप पकड़े खींचे, 5-25 मछली तो आएगी आएगी। अब वो 10 घंटे इकट्ठा होकर करे तो 500 हो गई, 500 लेकर के आए तो 500 का 5000 कमा लिया, हो गया। करना क्या है उसको भाई साहब? ऐसी स्थिति के अंदर बहुत आसान तरीके से हिंसा करके पेट भरने वाले, अब अंदर तो मिथ्यात्व तो पड़ा ही है। वो क्या देखता है, कोई जीव हिंसा थी, नरक गति था, नरक होती है, कुछ नहीं है, सब खाओ पियो मजा करो। पहले ही अंदर आपका मिथ्यात्व इतना गाढ़ बन जाता है, वो सामने से कुछ भी विचार करने को तैयार नहीं। क्यों करेगा वो, क्यों सोचेगा? चल रहा है, चल रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर एवं जीयम सपेहाय तुलिया बालम च पंडियम मूल्यम ते पवे संति मानुष से जोड़ी में तीजे। अब મૂર્ખ કે જીતને જીતાયેલો જોઈને મૂર્ખને પણ પંડિતની તુલના કરીને જે મનુષ્ય સંબંધીઓને પામે છે તે મૂળ ધર્મો જાળવી રાખનાર બીજા વણિક अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग क्रिया के जीव जो जिस प्रकार के जैसे हैं, कोई किस में राजी है, कोई किस में राजी है। जीव हिंसा करके भी राजी होने वाले बहुत हैं, प्राणियों की हिंसा करके भी अपना पेट भरने वाले बहुत हैं। अब कुसक गए सामा इमे कामा सन्निरुद्धे आवे कस हेरु बुरा काम जो गखे मन संविदे। सम्यक प्रकार से आयुष्य के बारे में काम भोगो और कुछ के अग्रभाग पर यानी योग बिंदु के समान हेतु से आते हैं, योगक्षेम नहीं जानता। अब इस तरह से जो है लोग अपना जीवन कैसे किस तरह से बिना बिताते हैं, कोई समझने को तैयार नहीं। यह कामाणी अठस अत्तठे धारण कोई देव निरोहिणम भवे देवी तिबे बीते स्वयं। अब काम भोग आदि की आसक्ति के अंदर कुछ लोगों ने सुख बुद्धि बना ली है। संसार का एक बहुत बड़ा वर्ग है, लाखों करोड़ों लोग हैं कि मात्र काम भोग से विषय वासना से ही अपना जीवन चला रहे हैं और ऐसे में ही अपना जीवन कर रहे हैं साहब। और उसको जो व्यवसाय का रूप दे दें, उसको व्यापार का रूप दे दें और उसी से पैसे कमाने की वृत्ति हो जाए तो लोग इसमें पाप मानने को तैयार नहीं। मिथ्यात्व ऐसी वृत्ति को पाप मानने देने के लिए तैयार नहीं। काम भोग विषय सुख, इसको जीवन का एक साधन मान लिया है, सुख का एक साधन मान लिया है। बस ऐसा सुख तो भोगना ही चाहिए, ऐसा सुख तो होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। मनोवृत्ति जीवों ने इस प्रकार से बना ली है। बाल सपस बालतम अहवे पड़िवत जिज्जा चिच्चा धम्मम अहम मिठे नरे उपवज्जेश। मूर्ख मनुष्य को कहा है कि अधर्मी मनुष्य अधर्म को अंगीकार करके और धर्म का त्याग करके जब चलता है तो उसका अधर्म ही उसको नरक गति दिलाता है। जैन शासन में स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान किसी को नरक में भेजते नहीं है और भगवान किसी को नरक में से निकालते। भगवान का काम क्या है, आप नरक में जाने योग्य पाप प्रवृत्ति का त्याग करें, ऐसा धर्म आपको समझा देना, ऐसा मार्ग आपको बता देना, बस एक ही लक्ष्य है। अब उनका अपने हिसाब से जीवन है तो भगवान और क्या कर सकते हैं भाई साहब। अब जीवों के मिथ्यात्व और कसाय मोनिय के कर्म भारी तीव्र हो तो भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर धीरज बस तेरे धीरतम सच्च दम्माणु चित्तिणो चिच्चा अधमम दम मिठे देवे सोभो बच्चे। पंडित का धीरत्व जो है वह सर्व धर्म के अनुवर्तनार्थ शांति और दश धर्म के अनुकूल। भगवान कह देखो भाई, धर्म इसका कि उसका, धर्म उनका कि उनका, धर्म किसी का कोई ऐसे मोनोपोली वाला मालिकी हक वाला नहीं होता है। आत्माना गुणों आचरण करવું એ धर्म है। बस आप अपने आत्म गुणों के अनुरूप आचरण करते रहिए, आपका कल्याण उसी में है। कोई अपने अपनी तरह से सब लोग जो है ये इनका धर्म, ये उनका धर्म, ऐसा धर्म, इनका धर्म, आपने सुकाम बीजानो धर्म करो, बीजा अपना धर्म करे, भाई ये सब छाप मत। जिससे आपका कर्म क्षय हो रहा है, आत्मा के ऊपर से कर्म के आवरण नष्ट हो रहे हैं, गुण प्रकट हो रहे हैं, ये आपका धर्म है।
बस सबसे बड़ी बात, जिससे आपके नए पाप का आगमन रुक रहा है, संभर हो रहा है, ये आपका बड़ा है। आप इसी पर लक्ष्य दे करके चलिए, बहुत बड़ी बात होगी। अब यहाँ पर एक आठवां अध्ययन जो है अलग से दे रहे हैं, और वो है यहाँ पर एक कपिल नाम के एक ऐसा पुत्र है, बालक है, जिसका नाम यहाँ पर कपिल है। अब उसके नाम का पूरा एक अध्ययन दिया गया। अब उसके नाम का अध्ययन देने की जरूर क्या है, लेकिन महावीर स्वामी अंतिम उपदेश के अंदर जगत के जीवों को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, उस काल में घटने वाली घटनाएं, उस काल में होने वाले ऐसे प्रसंग निमित्त बता करके भी जीवों को समझा रहे हैं, देखो ऐसा भी होता है। गांव का एक छोटा सा बालक है, उसके पिता की मृत्यु हो गई। बच्चे का नाम कपिल है, अब 8 बरस का बालक है। हालांकि उसके पिता खुद पंडित थे, वो दूसरों को पढ़ाते थे। अब अचानक उनकी मृत्यु हो गई, और बालक कभी 5 बरस का छोटा सा। अब माँ विचार कर रही है कि किसके पास भेजूं, कौन पढ़ाएगा, कौन संभालेगा, कौन रखेगा। थोड़े गरीब कुल के है तो करना कैसे करना। उस काल के अंदर गाय के गोरस मतलब दूध, घी वगैरह, दही छाछ की बिक्री नहीं होती, बेचा नहीं जाता था, पैसे से नहीं। और दूसरे नंबर पर विद्या कभी पैसे से नहीं दी। 2 विषय बहुत बड़े लक्ष्य में रखे थे। ज्ञान कोई दाड़ो पैसा थी नहीं, ज्ञान सामे वाला ने परिणमવું જોઈએ। કોઈનો દીકરો હોય, ગરીબનો દીકરો હોય તો એ ભણાવી ગણાવીને હોશિયાર કરી શકાય છે, અને કોઈને પેટ ભરવું હોય તો ભાઈ અમારા રસ્તે આવીને તમે ગમે ત્યારે દૂધ દહીં છાશ પી જાઓ। એ જમાનામાં કાકા ઘરના ઓટલા ઉપર છાશનું માટલું ભરેલું રહેતું, એક પેલું લેવા માટે અને એક ગ્લાસ રહેતો હતો। રસ્તે ચાલતો કોઈ પણ માણસ આવીને હાલતો છાશ પીને જાય। छाछ का इतना प्रभाव था कि एक तो नंबर सबसे ज्यादा छाछ का उपयोग पाचन शक्ति बढ़ाने में। छाछ से आपका पाचन तंत्र सुधरता है। कच्छ के प्रदेश में चले जाओ तो बाजरो વધારે છે, तो बाजरे के साथ में छाछ अनिवार्य होती है। दही छाछ जो भी है, जब भी आप बाजरा खाओ तो उसके साथ में दही छाछ का उपयोग अनिवार्य है, क्योंकि बाजरा अकेला गर्म भी है और रुक्ष भी है। दही छाछ स्निग्ध भी है और ठंडे भी है, तो आपको दोनों काम में आ जाएंगे। वैसे दोनों ही गर्म है, लेकिन फिर भी दोनों मिल करके अपनी स्निग्धता से उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन अच्छा बढ़ा देते। जब भी हो तो भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में दूध पीने को नहीं कहा है, लेकिन भोजन के अंत में छाछ पीने को। पर्याय बदल गई, गुणधर्म बदल गए। जिनको भूख नहीं लगती है, जिनका पाचन कमजोर है, उनको छाछ अलग अलग तरीके से पीनी है। पर एक बार सौथी मोटी समझी ले, जो दूध दही छाछ के साथ में नमक मिलाया तो फिर शत्रुता हो। दूध दही छाछ में भूल से नमक आपने जोड़ा, मिर्ची जोड़ दी आपने, या कोई ऐसे विषैले पदार्थ जोड़ दिए, तो वो आपके शरीर में रोग बढ़ाएगी। हमें ये भाषा न करे ना को तो बीजो नाम करे। भूल से कोई नमक आना ही नहीं चाहिए। छाछ के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, लखो सा। काली अजवाइन डालिए, थोड़ी सी जीरा डालिए, सौंफ डालिए, हींग डाल सकते हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस ये आपका पाचन सुधारती है, पाचन बढ़ाती है। भूख लगनी चाहिए साथ। आज कई लोग ऐसे भूख ही नहीं लगती है, बस घड़ियाल का टाइम देख करके भोजन करना है, बाकी भूख नहीं लगती। इसलिए पहली बात है, दूध हो, दही हो, छाछ हो, कुछ भी हो, नमक आना ही नहीं चाहिए, तेल मिर्ची उसके साथ जुड़नी नहीं चाहिए। लेकिन एक मारवाड़ी समाजी दुनिया में ऐसा है कि वो रायता भी बना ले, अब नमक भी डाल देगा, मिर्ची भी डाल देगा, बघार भी देगा, बहुत बड़ा नुकसान करके आम खाते हैं। एक वस्तु बिगाड़ के खाओगे तो वो शरीर में विकृति करेगी।
आपकी भाषा में हिंदी शब्द बिगाड़ना है तो आयुर्वेद के अंदर उसकी विकृति, उसके गुणधर्मों को नष्ट करके विकृति पैदा करनी, वो आपके शरीर में जाके विकृति, सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर ये हेतु है तो परोपकार का पुण्य था। 5 बरस के बच्चे को कहाँ पढ़ाने के लिए भेजूं, किसके? एक दिन माँ अपने बेटे को लेकर के बनारस गई और बनारस में जाकर एक बड़े विद्वान पंडित जी थे, उनको बोला, पंडित जी बेटे को पढ़ाना है, सिखाना, उसकी जिंदगी बनाना है, अब इसके बाप तो चले गए। पंडित जी ने कहा कि हाँ हाँ, इनके बाप को तो मैं भी पहचानता था, होशियार विद्वान थे, लेकिन अचानक चले गए। आखिर 10 के बाद फिरने के बाद एक पंडित जी ने हाँ कहा, ठीक है बहन, यहाँ रख के जाओ, लेकिन बस एक काम करो कि इसके लिए खाने पीने की, रहने की व्यवस्था कर दो। मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन इसके लिए व्यवस्था कर। अब 10 जगह भीख मांगते हुए उसने एक શેઠ से कहा कि શેઠ जी, मारो દીકરો રહેશે ત્યાં, ખાલી તમારે ત્યાં 2 टाइम जमवा આવે ત્યારે जमाड़ी। उन्होंने स्वीकार कर लिया, सुखी संपन्न थे, कई वांधो नहीं बेन, 2 टाइम आવીને ભલે જમી જાય, ભણતો હોય, શીખતો હોય તો ઘણું સારું છે, એનું ભવિષ્ય બનતું હોય તો આપણે ખવડાવવામાં શું વાંધો। इतनी भी तो उदारता चाहिए कि नहीं साहब? आज कौन कर रहा है? आप देख लो, समझे, कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। समाज में साधर्मिक आपके लिए का है, समान धर्मी है, आप उसके लिए सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बधाना पुण्य सरखा नहीं होता, बधाना कर्मों सरखा नहीं होता। कोईने पोताना जीवन में शेनी तकलीफ है, कोईने जीवन में कયું दुख है। अगर वो होशियार है, बुद्धिशाली है, पढ़ सकता है, तो खिलाने पिलाने में सहयोगी बनना चाहिए। ठीक है, अब पंडित जी ने सेटिंग कर दी साहब, आता है, जाता है, पढ़ता है, खाता है, पीता है। कर्म के उदय इतने भारी कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा 18-20 वर्ष की उम्र तक आया कि अब पढ़ लिख करके विद्वान बन जाना है, पंडित बनना है। ऐसी परिस्थिति में सेठ के घर एक दासी की, नौकरानी की, काम वाली बाई की बेटी थी, उसके साथ इसके संबंध हो गए और रात के चक्कर में फंस गया, मोह माया के चक्कर में फंस गया। मनुष्य के जीवन में कब कैसी बाधा आती है। अच्छे अच्छे पुण्यशाली हो, अच्छी बुद्धि हो, अच्छे विद्वान बनने की कक्षा आपकी हो, और ऐसे जाल में फंस जाओ कि आपकी दिशा ही बिगड़े, आपकी दुर्गति हो जाए। अब संसार है, देखो आप, ऐसी परिस्थिति के अंदर अब ये बात थोड़ी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते बढ़ते अब उस दासी की बेटी ने कहा कि अब तो शादी करनी पड़ेगी। अब ये पूछता है शादी क्या होती है? ब्राह्मण का बेटा है, संसार देखा नहीं, आके इधर बैठा है, शादी क्या होती है? अरे क्या होती है? नहीं, शादी करनी पड़ेगी, घर बसाना पड़ेगा, बंगला लेना पड़ेगा, कुछ तो करोगे कि नहीं? ऐसे कैसे चलेगा? तो कि इसके लिए तो पैसे लगते हैं। तो लगेंगे, अब पैसे कहाँ से लाना, कौन देगा? अब जिंदगी में पैसा देखा ही नहीं है उसने। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है, बाप दादा इसी तरह से थे, इसने पैसा क्या इसको मालूम नहीं है। काम क्या है, कर जरूर क्या है, 5 बरस की उम्र में यहाँ ला करके बैठा है, पंडित जी पढ़ा रहे हैं, शेख खिला रहे हैं, बात पूरी हो गई, आपको क्या करना है? अब वो कह रही है कि नहीं नहीं, अभी तो पैसा नहीं देते, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो आप पढ़े हो ना इतने बरस तक, पढ़ाई का क्या फायदा है? आप क्या उपयोग करोगे? जाओ તમે અહીંયા રોજના 2 શ્લોક બોલાવીને રાજાને જગાડો એટલે રાજા રાજી થઈને તમને 2 સોનામોર આપી દે। સંસ્કૃતનો પ્રેમી રાજા છે। जाओ, वो जल्दी उठता नहीं है, आप जाके उठाओगे तो होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, चलो भाई, संस्कृत तो आती है, मैं जाके 2 श्लोक सुना दूंगा। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको 2 श्लोक बनाने में पूरी रात नींद नहीं आई, और जहाँ गया तो वहाँ पर देखा कोई टाइम का भरोसा नहीं, पता नहीं, कुछ भी नहीं है। बीजो कोई आवे ने राजा ने वहेला उठाड़ी ने ए पैसा ले जाए न करता आज हूँ जाऊँ। वो जल्दी पहुँच गया साहब, जल्दी पहुँच गया तो वहाँ पर इंतजार करता रहा, तो राजा के सैनिक घूमते थे, पकड़ लिया। भाई अर्धी राते अहिया केम फरो, कौन छो तमे, क्या बात है? समझे, उसको पकड़ के बांध के रखा है, सुबह रात दरबार भरेगा तब राजा के सामने हाजिर करेंगे, और क्या।
ऐसे समय में राज दरबार में उसको राजा के समक्ष उपस्थित किया। उसने तो कहा मैं तो आपको श्लोक बोलकर उठाने आया हूँ। राजा के અત્યારે तो उठीने આવીને દરબારમાં બેઠો છું, હવે ક્યારે મળે? तो कि मैं तो श्लोक बोल जाऊँ, आप सुन लो साहब। देखा राजा ने कि वाह भाई वाह, शक्तिशाली है, बुद्धिशाली है, श्लोक अच्छा बोलता है, श्लोक अच्छे सुनाता है सब। बोलता रहे કેટલા જોઈએ છે, શું માંગવું છે, બોલ તું કે એટલું આપવા તૈયાર। निर्दोषता देखी, इतना निर्दोष बालक है, इतना बिल्कुल सरल जीव है, तो इसके निर्दोषता देखकर उसको सामने से राजा ने कहा बोलता रहे કેટલા જોઈએ છે। હવે ગણિતનો આંકડો આવડતો નથી, સંખ્યા કઈ ગતાગમ નથી, ખબર નથી क्या मांगना, कितना मांगना, कैसे मांगना। રાજન જરાક ટાઈમ આપો ને, થોડોક જરા કાલે વિચાર કરીને આવીને। ભલા માણસ લક્ષ્મી ચાંદલો કરે ત્યાં તમે કપાલ ફેરવી નાખો એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ। ऐसी स्थिति में राजा ने देखा कि बेचारो बूढ़ो बद्रिक सरल जीव से जा भी जा, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, क्या मांगना है, कुछ मांगना है, देख ले। सरल जीव की सरलता बहुत काम आती, लेकिन सरलता को कोई मूर्ख ना समझ ले। आपको બહુ ભોલા ભોલા જેને કહીએ ને આપણે ગુજરાતીમાં, એટલે ભોળા એટલે અડધા મૂર્ખ સમજે, ભોળા એટલે પાવલી ઓછી સમજે છે, કોઈ કે ના ચારાની ઓછી છે। ये छाप अगर आपकी हो गई तो और मुश्किल हो जाएगा। હવે તો બધાય કહે છે કે આ દુનિયામાં ભોળા માણસનું કામ જ નથી। હવે તો એવા 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 થવું જોઈએ, એવા થવું જોઈએ, એવા હોવા જોઈએ, નહીં તો દુનિયામાં તમને જ લોકો અડધા કાચા કહે। अब ये सब बोलने वाले आज बहुत है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जाकर के सामने एक गार्डन में चला जाता है, वहां जाकर के पेड़ के नीचे बैठ करके अपना दिमाग चलाता है, मांगू કેટલું मांगू, शू मांगू, काले કેટલું मांगू। वो मेरे को बोलती है शादी करनी पड़ेगी, फिर जो है घर लेना पड़ेगा, फिर ऐसा करना, तो કેટલું मांगू। फिर वो अपने हाथ की अंगुली पर गिनता है, एक अंगुली के, दो अंगुली के जितना, दो मांगू कि चार मांगू कि कितना मांगू। अब जब अंदर से आपका लोभ प्रकट होता है, लोभ कसायनी मोहनीय कर्मनी प्रकृति तो अंदर ही है। अब वो जब अंदर से प्रकट होती है तो अंदर से आवाज आती है आटलाમાં શું થશે, આટલામાં શું થશે, આટલામાં શું થશે। हर बात में उसको क्या लगता है, बस वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। सरल जीव है बख्श, ख्याल आएगा। क्या मालूम कैसे हो रहा है, किस तरह से इनके घाती कर्मों का क्षय होता है, मोहनीय कर्म का भी क्षय होता है। उसको लगता है कि હવે આનો તો કોઈ અંત જ નહીં, જहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो भवंडई। जैसे जैसे आपका लाभ बढ़ता है वैसे लोभ भी बढ़ता है। थोड़ा सा चाहते थे मिल गया ज्यादा, तो अब लोभ बढ़ेगा, अब लोभ बढ़ेगा तो वो आदमी और लाभ बढ़ाएगा, अब लाभ बढ़ेगा तो और लोभ जगेगा। अब इसका अंत कहाँ आता है। अनजान अनपढ़ भी ऐसी परिस्थिति में होशियार बन जाता है। अनपढ़ गंवार हो वो भी अपनी तरह से होशियार बन जाता है कि चलो इतना पैसा मिलता है। अब इस स्थिति के अंदर आते आते जे लखनम चसुमिनम अंग विजम चमे जे पहुंचती न होते समणा मुच्छन्ते एवं आया ये बखाया। किस तरह से वो मात्र अपनी संख्या को बढ़ाने का विचार करता रहा। उसको लगता है इतना मांगो, इतना मांगो। अब जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्डे। 2 मास कैम कज्जम कोड़िए बिना निवड़ी। 2 मास के मासा, उस समय मासा आता था, तोला तोला से भी छोटा जो बोलते थे, 2 छटांग बोलते थे कोई। इतना सोचने के बजाय वो पेड़ के नीचे बैठ करके चिंतन मनन करते हुए कहाँ से कहाँ उसकी लोक दशा पहुँच गई, कितने से कितना विचार करने लग गया। और फिर आपको जो है नोरख शिशु गिज्जिजा गंड बच्छा सुने गच्चता सुजाओ पुरी संपलो विद्या केलंती जहावदासी नारी सुनो गिद्दिजा इत्थि विप्रमाणगारे तमम च पेशलम न चातत्थ विद्या बेकुपम। अब इस तरह से वो जो है अपनी तरह से इन इच्छाओं को जैसे जैसे अपनी इच्छा बढ़ाता जाता है। मनुष्य को ये मालूम नहीं कि इच्छा आकाश के जितनी अनंत होती है। इच्छा का अंत कहाँ आता है। कोई कितना भी प्रयास कर ले लेकिन ऐसे कोई इच्छा का अंत नहीं आता है। अब वो अपनी तरह से धीरे धीरे चिंतन मनन करता करता पूर्व जन्म का कोई आराधक साधक अच्छा होगा
तो एक तरफ से उसके चारों घाती कर्मों का क्षय होता है, मौनीय कर्म का क्षय होता है। કંઈ માંગવું નથી ને કંઈ જોઈતું નથી, હું ખોટા રસ્તે ફસાઈ ગયો, બાપાને મૃત્યુ થઈને માને મને અહીંયા ભણવા લાવીને બેસાડ્યો ને હું ક્યાં गलत रस्ते। पश्चाताप की कई बार आपके कर्मों की निजरा कर ले, और पश्चाताप के बिना प्रायश्चित होता नहीं है। पश्चाताप पूर्वक अगर प्रायश्चित होता है तो आपकी कर्म निजरा भी ज्यादा अच्छी है। दोनों बात, चारों घाती कर्मों का क्षय हो जाए, मोहनीय कर्म टल गया, आत्मा वितरागी बन गई, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय गया, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुआ, अंतराय कर्म गया, अनंत शक्ति प्रकट हो गई। ये युवक लड़का किसी काम वाली बाई की लड़की के प्रेम में फंसकर, जाल में फंसकर के कहां से कहां जा सकता था, लेकिन बहुत लघु कर्मी जीव, हलु कर्मी जीव और कर्मों का क्षय होते हुए केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। अब वो केवली बनकर वहां सुबह में दिखाई देता है। राजा घोड़े पर बैठ करके सामने से निकलता है। काले तमे ज આવ્યા હતા ને? हाँ जी मैं था। बोलो शू निर्णय थयो, કેટલું માંગવું છે? अब वो कहता है कि राजन તમે માંગો, તમારે કેટલું માંગવું છે, બોલો તમારે શું? કેટલો फर्क पड़ी गयो। क्या कल की दशा क्या थी और ये आज क्या हालत हो गई? આવું પરિવર્તન શક્ય છે? આપણે કેવલ જ્ઞાન માટે 1000 ગણી મહેનત કરીએ। महावीर स्वामी ने तो 12.5 वर्ष तक साधना की, आदिश्वर भगवान ने 1000 वर्ष तक साधना की। और साहब ऐसे लड़कों को देखो तो, लेकिन इसको मत देखिए आप, इसके पीछे की लंबी साधना, बहुत लंबे काल से चली आ रही साधना, तब जाकर के जीवन में परिवर्तन होता है। अब ये स्वयं कपिल केवली बन गया है। महावीर इसका दृष्टांत दे रहे हैं साधु जो तमे एकदम नीचे पड़ती दिशा में जवा वालो एकदम ऊंची दिशा में चढ़ीने छे केवल ज्ञान पामी जाए। ये यहाँ पर खास करके कपिल केवली के नाम का एक अध्ययन बताया सर। अब यहाँ पर मुख्य रूप से 9वां अध्ययन ले रहे हैं, और 9वां अध्ययन जो है वो एक अलग से बताया है, और जिसके अंदर उस काल के अंदर नमी राजा करके एक राजा हुए सर। ये है 9वां अध्ययन, समझा, इनके नाम का है। अब नमी राजा के नाम से जो है मुख्य प्रसिद्ध राजकुमार है मिथिला नगरी के, और वहाँ इनका जन्म होता है। और यहाँ से जो है ये स्वयं अपने आप में राजकुल के अंदर जन्मे हैं, राजा के बेटे राजकुमार है। पिता ने अपनी तरह से यौवन वय में आते ही देख करके उसकी शादी कराई, लेकिन शादी कराने में भी 1 से नहीं 2 से नहीं 8 कन्याओं से शादी कराई। राजगादी पर बैठा दिया, राजकुल में है। अब यहाँ पर धन संपत्ति आदि कोई किसी बात की कोई कमी नहीं थी। ऐसी स्थिति के अंदर जो है राजपाट वैभव में चलते चलते खान पान के विरुद्ध आहार से शरीर के अंदर चर्म रोग हो गया, स्किन डिजीज बहुत भारी हो गई, पूरे शरीर में खुजली आने लगी। खुजली आते आते रात दिन परेशान हो गए कि नींद नहीं आती। क्यों होता है ऐसा? जब आपका पित्त विकृत होकर बिगड़ करके खून में मिल जाता है, तभी जा करके ऐसी परिस्थिति होती है। The skin, it is nothing, it is only the bed sheet of the whole body. आपकी गादी के ऊपर चद्दर कैसे है, वैसे ही हमारे पूरे शरीर के ऊपर चमड़ी भी जो है एक प्रकार की चद्दर है। अब आएगा तो अंदर से ही आएगा। स्किन के अंदर भी आप देखने जाओ तो 7 लेयर है, इतने पतले पतले अलग अलग 7 लेयर हैं। अब अंदर चमड़ी के नीचे खून बहता है, और एसिड जो है वो जब खराब हो जाता है तो पित्त में मिल जाता है। एसिड खराब क्यों होता है? ऐसा विरुद्ध आहार से, विरुद्ध खान पान से एसिड पित्त खराब होता है। दूध दही छाछ ની સાથે તમે ફ્રૂટ ભેગા કરશો તો પિત્ત ખરાબ થઈ જશે। दूध दही छाछ ની સાથે તેલ મરચું આવશે તો તમારું જે છે આખું બધું બગડી જશે। તેલ વઘાર જે છે ઘણું આવશે, સમજાય કે નહીં? તો એ તમારા માટે વધારે જે છે પિત્તને બગાડનારું થશે। ચાય કોફીની આદત જેની વધારે હશે ને ખાસ જમતાય ચાય કોફી પીતા હશે,
જમવાની સાથે પીતા હશે, જમ્યા ઉપર પીતા હશે તો એનું પિત્ત બગડીને લોહીમાં ખરાબ પિત્ત અંદર ભળી જાય છે. આજની તારીખમાં એટલા બધા નિયમો આપણે વિરુદ્ધ જઈએ છીએ આહારની અંદર, ઉલટા ચલ રહા है સર. લોકોને સલાડ ખાવા છે પણ સમજણ નથી કે પિત્તની રીતુ હોય તો કાકડી ના ખવાય, અને કાકડી ખાવી હોય તો टमाटर ना खवाए, ने टमाटर खवाए तो काकड़ी ना खवाए. अब आज से 50 साल पहले ये सलाड़ों का रिवाज नहीं था. ये आज के जमाने की पब्लिसिटी में आप लोग जो है जुड़ गए साथ. सलाड तो જોઈએ, सलाड तो જોઈએ, सलाड तो જોઈએ. समझ ही नहीं है, न बनाने वाले में समझ है न खाने वाले में समझ है. ઘરમાં બૈરાઓ બેચારા સમજતા નથી, એક જ પ્લેટમાં કાકડી ટમાટર બધું ભેગું કરીને રાખી મૂકે છે. કોઈના ઘરમાં એવી બુદ્ધિ છે કે 5-6 ફ્રૂટ ભેગા ખાવા જોઈએ, 2-4 टुकड़ा पपैया, 2-4 टुकड़ा आनंद, 2-4 टुकड़ा, ये सब आप मुश्किल कर रहे हो. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. कोई भी केला भी दूध के साथ नहीं खाया जाता. पर हमें बैरो गजब रही है बासा, फ्रूट सलाडिस बोलो, सब डाल दो फ्रूट, उनका कुछ भी नहीं जाता है. मेहमान आए ना, मेहमान को राजी करो. मेहमान को राजी करने में फ्रूट सलाद से ही राजी होते हैं. वो कोई दही में ही डाल देते हैं, कोई श्रीखंड में ही डाल देते हैं, क्या क्या करते हैं. जो बाहर जाकर देख के आते हो वैसा बनाते हो तो उल्टा विरुद्ध आहार. आयुर्वेद शास्त्र के अंदर ऐसे अलग अलग जात के 22 प्रकार के विरुद्ध आहार बताएं, और वो आपके शरीर का पित्त बिगाड़ेंगे, और वो पित्त बिगाड़ करके आपके ब्लड में आ जाएगा, तब वो स्किन डिजीज करेगा. स्किन डिजीज सैकड़ों प्रकार के हैं. अब स्किन डिजीज के अंदर आपको कभी तो सोराइसिस हो जाए, कभी तो खुजलाते खुजलाते चमड़ी उतर जाए, कभी आपको दांत खराब हो जाए, कभी रिंगवर्म हो जाए, कभी कैसे हो जाए, कभी आपको खुजलाते खुजलाते खून निकले वहाँ तक खुजलाते रहे. फिर ऐसे लोग जो है नाखून बढ़ा के रखे. बेचारा બૈરાઓને તો બહુ જ નખ માટે છે, ઘણા બેચારા નખ વધારીને जीवन पूરું करता हो. अब एक बात, नख वो अगर लग गया कुछ भी भागशाली तो फिर वो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, ये नुकसान बहुत ज्यादा है. तो नंबर 1, पहले ही अपना पित्त शांत करो. पित्त प्रकोप नहीं बढ़ना चाहिए. नंबर 2, पित्त को बिगाड़े वैसा नहीं खाना चाहिए. नंबर 3, पित्त बढ़ाए वैसा नहीं खाना चाहिए. लोग चाय पिएंगे तो पित्त बढ़ेगा ही बढ़ेगा, અને પાછા બૈરાઓ તો કેટલા ચામાં જ મસાલો નાખે, लो भाई और डबल. तो ये समस्या आजकल बहुत बढ़ती है. समझ शक्ति बिल्कुल नहीं है, अक्ल का उपयोग बिल्कुल नहीं है, और कोई ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं है. वो ऐसा करते हैं इसलिए हम भी डालते हैं, वो ऐसा करते हैं इसलिए हम भी डालते हैं. अरे भाई, उनके घर की प्रकृति देखो, आपके घर के लोगों की प्रकृति आपको समझना चाहिए. कोई समझने को तैयार. और यहाँ तक की दुर्बुद्धि होती है कि बस अगर एक बार शरीर पर चमड़ी का रोग हो भी जाए तो भी विरुद्ध आहार नहीं छोड़ते हैं, तो भी विकृति करने वाले पदार्थ नहीं छोड़ते. હવે કે ચા પીવાથી કંઈ થતું હશે? હવે કે ચા કે હું એકલો પીઉં છું, આખી દુનિયા બધા તો पिए છે, કેમ क्या થાય છે? अब ये उनके आर्ग्यूमेंट. तो उनको आप 100 गज का नमस्कार करके छोड़ दो भाई, पीने दो, और क्या करो. जब रास्ता ही नहीं है तो कोई क्या करे. ऐसी स्थिति के अंदर अंदर से शरीर के अंदर और उष्णता बढ़ाने वाले पदार्थ अगर आपने खाए तो निश्चित रूप से और पित्त प्रकोप बढ़ेगा. अब सबसे सरल उपाय कोई ऐसा, खाली जीरो ने वरियाली मिक्स करे ने चावड़ा ने बनती आप पित्त में थी विकृति निकल. एसिडिटी का सबसे बड़ा अच्छा उपाय जो है, कोई दवाई लेकर फायदा नहीं है. पहले तो पानी निकल पी करके वॉमिट करके आप बढ़ा हुआ पित्त निकाल दो, और बाद में जीरा वरियाली चबा करके खाओ. जीरे वरियाली के साथ में आंवला मिला दो तो और अच्छा है. आंवला भी ब्लड प्यूरीफायर है. फिर उसके ऊपर आपको गुड़ का पानी पी लेना है, बस बात पूरी हो गई. ये सबसे सरल से सरल उपाय है. त्रिफला भी आपके लिए रक्त शुद्धि कारक है, અને સૌથી વધારે સારું આંબીલ ખાતામાં થતું કરિયાતું એ તમારું બ્લડ પ્યુરિફાયર છે. કડવા લીમડાના પાંદડાનો રસ એ તમારા માટે બ્લડ પ્યુરિફાયર છે. એકલા ત્રિફલા પણ જે છે બ્લડ પ્યુરિફાયર છે. અને આ બધા ઉપાય કરવામાં આપકો સામને વિરુદ્ધ આહાર क्या है वो देखना है.
आप पौवा और टमाटर डाल करके खाओ, पौवा में टमाटर भी है, पौवा में वापिस नींबू भी डालते हैं, वो खा करके चाय दूध पियोगे तो विरुद्ध तो होगा ही होगा। उपमा खा रहे हैं, उपमा में भी टमाटर डाल दिया, उसमें भी वापिस नींबू डाल दिया, और वो भी माँ बच्चे को खिला रही है और वापिस ऊपर दूध पिला रही है। तकलीफ तो इस बात की है। ऐसी मॉडर्न मम्मियाँ अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही बीमार कर रही है। छोटी उम्र से बच्चों को स्किन डिजीज हो रहे हैं, माँ के कारण हो रहे हैं, और माँ को समझ नहीं है बिल्कुल। ऐसी स्थिति के अंदर नमी राजर्षि को इधर जो है शरीर के ऊपर सिरोसिस कोड रोग हो गया बिल्कुल, और इतना खुजलाना पड़ता है, परेशान हो गए, और इधर 8 कन्याओं के साथ शादी हुई है साहब। अब ये शादी का संसार जीवन चलाना कैसे, जीना कैसे? 24 घंटे में 1 मिनट नींद नहीं आती है साहब। कभी कुछ मिला तो खुजलाने लग गए, कभी कुछ देखा तो ऐसे करके जो हाथ में आया उससे खुजलाने। बहुत बड़ी समस्या, परेशान थे। राज वैद्यों को बुलाया ट्रीटमेंट करने के लिए। राज वैद्य कह रहे हैं कि भाई मैं ट्रीटमेंट तो करूं, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शन तो पालना है, कम से कम ये तो घटाओ, ये तो घटाओ, ये तो कम करो। ये कुछ कम नहीं हो रहा है, खाने पीने के अंदर कुछ कम नहीं हो रहा है, सुधारना भी नहीं हो रही है। जो आए सो खाना है, जो मिले सो खाना है, जैसा तैसा है। कौन किसके साथ क्या विरुद्ध हो रहा है, आपको लग रहा है बाहर थाली में ये अलग, कटोरी में ये अलग, कटोरी में ये अलग, कटोरी में। पेट के अंदर कटोरी नहीं होती है साहब, पेट के अंदर एक ही पेट है। जो आएगा सब एक में इकट्ठा होएगा, सब आए। बस अब ब्यास ना करे साहब, पर्यूषण का तब तपस्या करे। जब ब्यास नहीं चलते हैं तो खिचड़ी कड़ी भी खाएंगे, फिर वापस ऊपर जो है दूध पाक भी पिएंगे साथ, फिर वापस दही बड़ा भी खाएंगे, फिर उसके ऊपर नींबू का रस भी पिएंगे, मौसम्बी का रस पिएंगे। सब ये क्या करना है? तब करने वाले अलग होते हैं, मेनू बनाने वाले अलग होते हैं, वस्तु सामग्री लाने वाले अलग होते हैं। जो मेनू बनाते हैं वो तब करते नहीं है, जो तब करते हैं वो मेनू बनाते नहीं है साहब। खाने वाले बस आँख मूंद करके खाओ। अब इनके घर की तरफ से, इनकी तरफ से भी आते हैं, इनकी तरफ से 50 आइटम बनाओ, उनके घर वालों को 5-10 जने जिमने के लिए बुलाओ, शादी के जैसा जिमनवा। अब बेचारे उपवास करेंगे तो भी तबीयत, अब करना क्या? ऐसी उल्टी परिस्थितियां थी। अब नमी राजर्षि को वैद्य हकीमों ने कहा कि ठीक है, चलो मैं आपको एक उपाय देता हूँ, ये रक्त चंदन है, इसको जो ला करके घिसना, और घिस करके जो है उसका लेप शरीर पर लगा करके सुला देना, तब जा करके नींद आएगी। अब जब तक तो ये खुजली शांत नहीं हो, वहां तक नींद आएगी कैसे? और खुजली भी होती है तो अंदर सुई की तरह से चुभती है, पित्त का प्रकोप। एक साथ में 1000 सुई चुभाई जाए, ऐसी वेदना हो। आयुर्वेद शास्त्र में इसको कंडू रोग भी बोलते हैं। अब क्या करना साहब? इधर जो है वो घिसने के लिए लाया पत्थर, और ये रानियां घिसती हैं। 1-2 जने घिसे, 2 जन जा करके लगा करके विलेपन करके सुला दे। बहुत लंबे टाइम के बाद पहली बार आज नींद आई। बहुत लंबे टाइम के बाद पहली बार नींद आई। शांति से कुछ सोया था, 10 मिनट हुई थी, लेकिन ये एक साथ में 8 जने घिसने बैठे, और हाथ में 2-2, 3-3, 4-4 कंगन पहने साहब। तो आवाज कितनी है? और रात की शांति के अंदर ये आवाज भी बड़ी भारी हो गई। सबसे बड़ी समस्या हो गई। अब 10-20 मिनट के अंदर ये खड़खड़ 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 की आवाज जो है, कंगन पहने हुए थे उसकी आवाज से उसकी नींद बिगड़ गई। अब कच्ची नींद में से वापस इंसान उठे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे में उसने उठ करके साफ कहा कि मानमान आटला लांबा महीनाओं પછી પહેલી વાર ઊંઘ આવી, પણ આ તમારા હાથમાં બધો ખડખડની આવાજથી મારી ઊંઘ બગડી ગઈ। આ બધું કાઢીને ફેંકી દો, सब हाथ में से निकाल के फेंक। હવે નવી પરણીને આવેલી વહુઓ ભાગશાળી, એમને તો 16 શણગાર હોય છે ને, હવે આ કઈ રીતે હાથમાંથી કાઢીને ફેંકવાના? હવે એમને અક્કલ છે કે નહીં? આવું બોલાય ખરું? સમજાય કે નહીં? બૈરાઓ કોઈ હાથમાંથી બંગડીઓ કાઢે કોઈ દાડો? समझવું જોઈએ કે નહીં? 8 जने एक दूसरे का मुंह देखते हुए कोई निकालने को तैयार, પણ પેલો કહે છે ભાઈ મને ઊંઘ આવે એટલી વાર તો કાઢો, તમે તમારે પછી હવારે ફરી પહેલી લેજો ભાઈ।
ના ક્યાં છે? હું ક્યાં ના પાડું છું? તમે એટલું તો કરો છો. अब आठों ने अंदर मिल करके एक विचार किया कि चलो एक काम करो, एक राखो ने बाकी नहीं काढो, एनी ये बात रही जाए ने आपनो ये रही जाए, बे माते एक सब निकाल के रखी और एक एक पैनी समझे। अब वो बरोबर घिस रही है शाम, अब आवाज नहीं आ रही थी, अब बरोबर जो है वापिस चंदन का विलेपन कर रही थी, फिर नींद आ गई। अब सुबह उठा उसने, केम पण શું થયું આજે, કેમ આવાજ નહીં આવે? તો કે બધી કાઢી નાખીને એક જ રાખી છે। एक हो एकला हो तो क्या थी आवाज आवे? एक नहीं आवाज थोड़ी आवे। अब ये भाई साहब सिर्फ एक शब्द को पकड़ करके बस मेरे को तो एक शब्द ही काम का है। એ જીવ તું એકલો આવ્યો છે ને એકલો જવાનો છે, એકલા હોઈએ તો સુખ શાંતિ છે કે આ ઘણી ભેગી થઈ ગઈ એની તો રામાયણ છે। अब ये मन में चिंतन मनन करते करते एक जीव एकलो આવ્યો છે ને એકલો જવાનો છે। હે ભગવાન, હવે મને આ રોગ મટી જાય તો હું આ સંસાર છોડીને નીકળી जाऊं ने એકલો અમારા આત્માનું કલ્યાણ કરી લઉં। इधर शादी करके आया, इधर 8 कन्याएं साथ। अब ऐसी परिस्थिति में ये भाई सब अपना चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। वैद्य शास्त्री को बुला करके कहा तुम्हारे जेटली दवा करवी હોય કરો, મારે બીજું કઈ નહીં, મને હાજર થવાથી મતલબ છે। પેલો વૈદ્ય કહે છે બીજું કઈ ના કરો, ખાલી ત્રિફલા ચાવો અને ગોળનું પાણી પીઓ, પતી ગયું। ખાલી ત્રિફલા લો અને બીજું કઈ ને આમલા લો ને એની હાથે આ ગોળનું પાણી પીઓ, ખાલી જીરું ને વરિયાળી ચાવો અને એની હાથ ઉપર આમલાનું ચાવીને પછી ગોળનું પાણી પીઓ। थोड़े दिन में ठीक हो गया तो बस હવે હું દીક્ષા લેવા જાઉં છું, મારે છોડી નીકળી જવું છે। આ 8 કન્યા માથું કૂટે તમારું ભલું થાય એ દિવસે બંગડીઓ ન કાઢી હોત તો આ રામાયણ ના આવે। બધી કાઢી નાખી, આ એની ઉપાધિ થઈ ગઈ, આ એને ભાન થઈ ગયું કે હું એકલો છું। આપણે ન કાઢી હોત તો સારું થાય। अब क्या करना है? ये तो तैयार हो गया। હું હવે કોઈ સંજોગોમાં સંસારમાં રહેવા નથી માંગતો, બસ मैं तो अकेला आया हूँ, अकेला जाने वाला, मेरी आत्मा का कल्याण मुझे करना ही करना है हर हालत में। अब ये अपने बिना किसी के उपदेश के, कोई साधु साध्वी नहीं आए, कोई नहीं आए, अपने मन से इतना विरक्त वैरागी बन गया है। देवलोक के अंदर इंद्र महाराज उस समय इसके वैराग्य की परीक्षा करते। તમારું વૈરાગ્ય એટલું ઊંચું હોય કે દેવલોકમાં પ્રશંસા થાય? બોલો, થઈ છે તમારી? કાકા, તમારી પ્રશંસા દેવલોકમાં થાય કે આખા મલાડમાં થાય? મલાડમાં થાય તોય ઘણું છે। अब ऐसी परिस्थिति में इंद्र महाराज परीक्षा करने आए। अब इंद्र प्रश्न पूछ रहे हैं और नमी राजर्षि जो है उत्तर दे रहे हैं। उसका ये 9वां अध्याय। क्या इंद्र पूछ रहे हैं और क्या ये नमी राजर्षि उत्तर दे रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं, वो क्या भणवा गया था, क्या सीखवा गया था, क्या समझवा गया था, और किसने ऐसा समझाया भाई कि एक राजा इंद्र को अपनी परीक्षा के उत्तर में ऐसा समझाया? ये पूरा अध्ययन इसी के नाम। अब जो समझा रहे हैं, क्योंकि वैराग्य अंदर से जगता है, विरक्ति अंदर से जागृत होती है, और जो समझाए एक एक बात को लेकर के समझे कि नहीं, तो राजा इंद्र भी सुन करके आश्चर्यचकित हो। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा स्वरूप, बहुत बड़ी बात हो गई, समझे कि नहीं। ऐसा स्वरूप समझ करके नमी राजर्षि भी नमन वंदन करता है। इंद्र महाराज नबी राजर्षि को वंदन नमन करते हैं, आखिर दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के अपनी साधना में एक बस अकेले रह करके ध्यान करें। जब आप ध्यान करोगे तभी आपको आत्मा की अनुभूति होगी, नहीं तो वहां तक नहीं होगी। जब तक ध्यान में नहीं जाओगे वहां तक आत्मा की अनुभूति नहीं। टू गेट द इंफॉर्मेशन ओनली एंड टू गेट द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द सोल, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट टू रियलाइज द थिंग, પોતે પોતાની આત્માને જે છે અનુભૂતિ કરવો એ અલગ વાત છે। એના ઉપર ભાષણ દેવું એક અલગ વાત છે, વ્યાખ્યાન દેવું એક अलग बात। हमको आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं हुई है। ज्ञान भी कब हुआ है, कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा हुआ है, 1% हुआ है कि 2% हुआ है, वो अलग है। लेकिन आत्मा की अनुभूति जब हो जाए, समझे कि नहीं, तो बहुत बड़ी, तब सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार हो जाएगी। लेकिन जरूर है उसके पहले ऐसा तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए।
आत्मज्ञान हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, सम्यक दर्शन आपका परिपक्व हो जाए, फिर तो आपके लिए कोई चिंता का सवाल नहीं है, मोक्षों का द्वार खुल जाता है। अब जब मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है तो आत्मा के लिए सीधा रास्ता, नमी राजर से दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में चले जाते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण साध लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। कल भागशाली हम यहाँ पर 10वां अध्ययन भी लेंगे। भगवान ने 10वें अध्ययन के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे विकास की सारी प्रक्रिया बताई। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्मा का विकास कैसे आगे उत्तरोत्तर एक एक कदम पर हो रहा है, उसकी बात फिर आगे कल प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे। कने आप दीक्षा लेनी कोनी ने कोई प्रश्न उत्तर से मतलब है। इतना करने जाओ 1 महीना लगे। शॉर्ट ये शॉर्ट है बस, सारांश में आपको स्टोरी से शॉर्ट किया। उपवास बाणा सूर्योगे अभद्र मस्काई देवी प्यारा सागण मारिदम सवसन पानार कोर्सी सार मूर्ति सूर्योगे सागण सवसन देगा पानस लेवन से बहुलेन वास ससिद्धन वासिद्धन वा मुस्तिरे उगय श्रीदम कार सिम बोर सिम सार बोर सिम उगय श्री देवम प्यानम देवम प्यानम सागण देवम सवसन देगा आयम मिलम पचका विगम सागण लेवालम गया तस्फित तड़न मारिदम सवसन एकास्तम व्यास्तम पचकाए देवीयम प्यानम सागरम आउतन बसन गुरु धन्यवाद सवसन देगा पानस लेवनक्ष बहुलेन वासिद्धन वासिद्धन वा मुस्तिरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।